for the meeting higher education of his son, Anjay has planned to rent out his property in Aurangabad at rupees 2 lakh per year for the block of 5 years, which he will invest in an equity fund by the end of the year for the 5 years and then annual rests. ठीक है, सो ये आपको सेंटेंस क्लियर हुआ? फर्स्ट इज क्लियर. सो गोल कौन सा है यहाँ पर? सबसे पहले इट इज फॉर हायर एजुकेशन. एक बार मैप कर लेते हैं हायर एजुकेशन के गोल के साथ. वी स्टडीड दैट हायर एजुकेशन इज वर्थ 75 लाख, ऐसा कुछ हमने कल पढ़ा था. सो वेयर इज इट? हाँ, goal number 5, higher education of Ajinkya when he attains 19 years of age, that is 18 years from today. In fact, 75 lakh would be required at current prices and cost escalation is 6% per annum. Ajinkya is 1 year old now, so amount is required after 18 years. Okay, now it is clear. The goal of meeting higher education of his son, Sanjay has planned to rent out his house property in Aurangabad, rupees 2 lakh per year for the block of 5 years, which he will invest in an equity fund by the end of the year for the 5 years and then annual rest. The annual rent will be increased to yield 4% of property value every 5 years, and the same investment pattern will be followed each 5. After third block of 5 years, Sanjay will move his equity fund value to debt fund and invest the rent in the same debt fund till he need the money for higher education. Please advise shortfall or surplus at the time of reaching the goal. कोई मुझे ये पूरी इन्वेस्टमेंट पैटर्न समझाओ. अब ये घर की वैल्यू, सी इन द केस स्टडी दे हैव मेंशन्ड वैल्यू ऑफ हाउस, इट इज 50 लाख रुपीस राइट नाउ. 50 lakh rupees right now, हम लिख लेते हैं ये, and real estate appreciation rate is 6.5%. ठीक है, let's list down. Current value of home is 50 lakh. Real estate का inflation वो 6.5% है. Okay, one more thing, equity में investment करना है, so equity return is 11%, as we know. अगर टाइमलाइन की बात करें, so this expenditure required at the end of 18th year, तो हमें 5 साल, like so there's 5 years, 10 years, 15 years और 15 के बाद 3 years का period है. At the end of 15th year, equity fund will go to debt fund, and debt का I think सब कुछ जो भी 15 पे debt पे चला जाएगा, investment will go on, and debt का return है I think 7.5%. कल हमने जो यूज किया था वही है. Fine. Now suggest the investment pattern. कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और करंट एजुकेशन कॉस्ट इज 75 लाख, और उसका इन्फ्लेशन एंड ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 6%. दैट इज ऑल्सो वन मोर इंफॉर्मेशन गिवन टू अस. व्हाट टू डू? सजेस्ट. What has been suggested? Step number 1, we find out estimated expenses. That is very easy for us to find out. 75 lakh की FB ढूंढ लेनी है 6% से for 18 years. So that will do. Now, investment pattern suggested in the question is 2 lakh is the rent. 2 lakh is the rent for the block of 5 years, initial 5 years invested at the end of the year. So पहले 5 साल खत्म हो गए, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट चल रहा है. देन उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. Estimated value of property at the end of 5th year, और उसका 4% will be the rent for next block. Other block will reach to 15th year, and will go there for 3 years. That's how we will go. ठीक है, अब फटाफट estimated expenses उसको नोट कर लेते हैं. 75 lakh rupees required then.
बताओ तो हाउ मच इज इट? अरे बहुत टाइम लगा। 220 256 567 सर नहीं सर ये तो कल ढूंढ लिया था ना, कुछ 21407 214 कल ढूंढ लिया था सर ये तो 2124 407 सॉरी 214 07 543 ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ 18th ईयर। अब इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं। PMT is equal to 2 lakh, essentially end mode, N is equal to 5 years, I by Y is equal to 11%. Let us find out FV. ये end mode है without failure. 1245560 1245560 ठीक है ना? राइट। अब इसको मुझे PV तो लेना है, राइट? मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको फर्स्ट स्टेप सिखा रहा हूँ, देन यू विल रीच टू 18th एंड विल लेट मी नो। पीरियडिकली मैं आंसर लेते जाऊंगा आपसे। तो यहाँ पर 5th ईयर के एंड पे हमने जो एक्यूमुलेट किया वो लिख लेता हूँ, दैट इज 12,45,560, राइट? सो दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ओके, प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी कितनी है? 50 लाख। एंड अब हमें क्या लेना है? वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ 5th ईयर। सो n इज इक्वल टू 5, I by Y is equal to 6.5 and let us find out FV. वैसे तो डायरेक्ट इसको 2 लाख को भी ले सकते हैं ना 6.5 पे इन्फ्लेट करके, क्योंकि वो 4% ही है आज भी। आज भी हाँ, वैसे भी ले सकते हो, पॉसिबल है। यस यस राइट, वैसे भी ले सकते हो। 68504 68504 433 ठीक है। अब इसका मुझे चाहिए 4%। मैंने डायरेक्ट किया था तो 274017 आ रहा है। सेम ही आए, इट विल बी सेम। uh, 28086776 28086776 ये कुछ नहीं, ये कुछ ज्यादा ही होगा। 274017 हाँ 7 4017 ये ठीक लग रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में दिस अमाउंट शैल बी टेकन एज PV, दिस अमाउंट शुड बी टेकन एज PMT। अब मुझे बताओ 10th ईयर के एंड पे कितनी वैल्यू आती है? So we reached at the end of 15th year, इतना हमारा आंसर आ गया। अब 3 साल and things will go in which fund? A debt fund. तो ये 3 साल के लिए इसकी FV ढूंढो। So we reach, see we arrive at an accumulation at 18 और 18 पे total accumulation कितना आ रहा है? 1253266 32,266 ठीक है। 10870 समथिंग आ रहा है। आपने PMT कितनी ली प्रीति? बढ़ाई थी आपने वो 4% वाली? नहीं सर, बढ़ानी पड़ेगी ना। अब यहाँ पे भी जो सेम आगे करते आए वो उनको करना ही पड़ेगा। तो वैसे क्वेश्चन आसान है बट ड्रजरी ज्यादा है, काफी मेहनत करा रहे हैं हमसे यहाँ पर, और उसमें गलती होने के चांस काफी ज्यादा रहती, इतनी ज्यादा मेहनत कराते हैं ना उसमें। तो सर प्रेजेंट वैल्यू 8750349 है, तो उसका 4% इंक्रीज करके वो PMT लेना है, सेम ना? नहीं, जो रेंट हमारा चल रहा है ना, रेंट बढ़ रहा है, वो आपने बढ़ाया? नहीं सर, 50 lakhs नहीं। इसको तो आप ऐसा करो। So सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सब पीरियड के रेंट भी यहाँ पर लिख दिए। सो यू कैन आल्सो क्रॉस चेक। ये पहला तो मैंने किया था 0 से 5, फिर 5 से 10 का कितना वो भी मैंने आपको गिन के दिया था। देन 10 to 15 and 15 to 18 and these are rent
rents move. Finally, to conclude, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है? 88,75277. Right, so this is the shortfall. So probably if the data remains same in examination, यही आपका आंसर होना चाहिए. Fine, so ये easy question था. According to me, it wasn't tough. Confusion was only there कि rent जो बढ़ रहा था block of 5 years में, वहीं पे confusion था. Other than that, if it's a 5 marker question, according to me, it's really easy. 5 mark में ये बहुत आसान question मैं मानता हूँ. Now, yes, Vivek. સર મને હજી અલગ આન્સર આવે છે બે રીતથી. મને 5 and 4 વાળો આન્સર આવી ગયો, પણ if we follow the last method કે જે कर देता हूँ. To meet the retirement goal of Mahesh, he utilizes the EPF contribution that increase 3% every year along with PPF. अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, हमने जो सैंपल पेपर किए थे इनके रिलेटेड टू रॉजर एंड उर्वशी, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हमने आइडेंटिफाई की थी कि लाइक एनपीएस कंट्रीब्यूशन एन्युअली थे, तो हमने कौन सा मोड लिया था, याद करो? एंड मोड लिया था. और पीपीएफ कंट्रीब्यूशन में हम कौन सा मोड लेते हैं? बिगिनिंग. राइट, सो बस एनपीएस के बदले यहाँ पर ईपीएफ हो गई. ईपीएफ है, बट द लॉजिक अकॉर्डिंग टू मी इज गोइंग टू गो सेम. So to meet the retirement goals of Mahesh, he utilizes EPF contribution that increases 3% every year along with PPF. He contributes maximum permissible amount in PPF till maturity and then 4 blocks of 5 years with similar contribution. तो ये तो हमारे लिए आसान है. Both EPF and PPF rates are expected to be 6% on an average throughout the period. He also needs rupees 20,000 at current cost additionally for medical needs. Please advise whether he will be able to meet the retirement goal. ठीक है, चलो अब उनका रिटायरमेंट गोल हम पढ़ लेते हैं. That's not going to be tough. Retirement at the age of 62. Retirement corpus to yield inflation adjusted expenses till the lifetime of Sherling. और एक्सपेंसेस कौन से लेने हैं हमें, उसके कुछ क्लैरिटी दी है? सो एडिशनल लिखा है. हाँ, रेंट तो होगा नहीं बिकॉज दे आर एनीवे गोइंग टू बाय अ हाउस. और रिटायरमेंट के बाद घर तो होगा ही होगा. सो अभी करंट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है 60,000. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दे विल नीड फर्दर 20,000. So medical expense terms में 80,000 is the expenditure for which we have to plan retirement. यही हुआ ना कि हम estimation of expense करेंगे तो उसमें 60 को अलग से करेंगे, 20 को अलग से करेंगे, ऐसे नहीं, टोटली 80,000 लेके हम आगे बढ़ते हैं. तो सर ये अच्छा ये करंट कॉस्ट में ही है. ओके. सो जीरो पे हमने टाइमलाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं. सो रॉजर इज नाउ 31 एंड शेरलिन इज 28. सॉरी रॉजर नहीं, इसका संजय. रॉजर कहाँ से आ गया? अभी रॉजर की बात करते करते. ही इज रिटायरिंग एट द एज ऑफ 62, दैट इज 31 years hence. तो वो टाइम पे शर्लिन की एज कितनी होगी? शी इज 3 years younger, so she will be 59, right? Or and her life expectancy is 80. तो ये पीरियड हमारा प्लानिंग पीरियड कितना रहेगा? 21 years. So, यहाँ पर कुछ गड़बड़, if I have done something wrong, let me know. ये ठीक किया है ना हमने? Yes sir. Correct. 18 years ना? 21 कैसे? शेरलिन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक हमें करना है. तो when Sanjay retires at 62, she will be 59 because she is 3 years younger.
28 है सर उसकी, तो बराबर हुआ है ना, तो Yes, शी इज thank you. 28 right now. So when Sanjay retires, she'll be 59, and 59 से 80. So that is how we find out 21 years. 21. Correct, Preeti? Okay. Sir. अब हमारा इसमें एक चीज मिसिंग है कि रिटायरमेंट के बाद पैसा कौन से फंड में रहेगा. Is it mentioned in the question? No, sir. No, sir. Because both the things have to come to an end, right? So EPF, PPF तो रिटायरमेंट तक खत्म हो जाएगा. Since nothing is mentioned in the question, like obviously इतना याद रखा है उतना भी बहुत है. Let me check कि अगर since a post-retirement rate isn't available here, we consider at the rate of 7.5% after retirement. Debt का rate हम लेके चलते. That sounds logical, है ना? Correct? ठीक है, चलो. Yes, अब sir. step number 1 आपको दे देता हूँ. Find out corpus. That is to be done by you. I'm not going to do this. Find out corpus. Crore 70. ठीक है. So PV is equal to 80,000 into 12. ठीक है. N is equal to 31 and I by Y is equal to 4.5. Inflation हमने लिया. Let us find out FV, and this FV happened to be 37 lakh 57,303. Okay, 303. Now this amount has been taken as PMT. ठीक है, इसको beginning mode में ले लेते हैं. N is equal to 21. I by Y is equal to real rate. Simply, it is 7.5% and 4.5%. And let us find out PV. So this should be the corpus. 6033 4302. That is 6033 26. 26. ठीक है. So this is the corpus. Done. Clear सबको? Yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि ये तो हो गया. अब ईपीएफ पीपीएफ दोनों को हमें रिटायरमेंट तक लेके आना है. सो टाइम पीरियड इन द क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है 31 इयर्स. अब पीपीएफ से हम शुरू करते हैं. लेट अस फर्स्ट टेक पीपीएफ और पीपीएफ को हम आगे बढ़ाते हैं. ओके, लेट्स रीड हाउ मच इज पीपीएफ बैलेंस राइट नाउ. PPF. So 3,77,440. That is the PV in PPF. ठीक है, बट अकाउंट ओपन कब किया गया था? जुलाई 14 में. तो मुझे बताओ हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 5 साल. So 14 15 तो हम इस कंसिडर करेंगे ही नहीं. हाँ. 14 15 shall not be considered. Okay. We shall be considering 4 years 15 4 years. 17 18 19. 4 साल पुराना है. 15 साल की टोटल मैच्योरिटी में 11 साल बाकी है. एंड दे आस्क्ड अस टू इन्वेस्ट इन द ब्लॉक ऑफ 4 years. 4 ब्लॉक्स में तो पूरा 31 हो जाएगा. एग्जैक्टली 31 उन्होंने प्रॉपरली मैप करके दिया है. ठीक है. सो पीपीएफ की भी एफवी हम ढूंढ ही लेते यहाँ कहीं पे, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा. ठीक है. सो पीवी फॉर पीपीएफ इज इक्वल टू 3,77,400. ठीक है. पीएमटी इज इक्वल टू पूरा 1.5 लाख हमें इन्वेस्ट करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था, मैक्सिमम परमिसिबल. एंड एन इज इक्वल टू 11 + 20. राइट, दिस इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. 11 + 20 क्यों लिखा? एंड लेट अस फाइंड आउट एफवी. 6% था ना इसका? हाँ, I by Y 6%. 1578. 1115. 1359. So it is 1,57 lakh. 1,57 lakh 81115. हाँ चलेगा. That's okay. That's absolutely perfect. चलो, तो ये PPF का भी सेटिंग हो गया. Done. Okay. अब
ईपीएफ में कितना बैलेंस हमारे पास है? सो 8,27,000, मैं इसको लिख लेते इधर क्योंकि अब हमें वहां पर जाना पड़ेगा। ईपीएफ इज इक्वल टू 8,27,325, और हमें याद हो अगर पीएफ एक्ट के हिसाब से कि एम्प्लॉय उसने कब जॉब शुरू की है। सी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ही मैरिड फॉर 2 years एंड कुछ हमें यहाँ पर उसकी जॉब का डेटा दिया नहीं है। हाँ, अब इन्होंने जॉब कब से शुरू की है वो आपको चेक कर लेना है। इज इट मेंशन्ड एनीथिंग एनीवेयर? नो सर। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, नथिंग मेंशन्ड, राइट। हमने एक रूल पढ़ा था कि अभी जो एम्प्लॉइज है, राइट, दोज हु आर जॉइनिंग, आई थिंक 14 या 16 ऐसी कुछ डेट थी, या 15 ऐसी 2014 था। 14 सर सितंबर 2014। यस, 2000 सितंबर 2014 के बाद इफ एनीबडी जॉइंस तो उनका पूरा का पूरा किस में जाता है? पीएफ में ही जाता है, बीएफ में जाता है, कुछ नहीं जाता है। सो यहाँ पर हमें जो क्लियर दिया हुआ है कि दोनों का उसका पीएफ में ही जा रहा है। सो इज गेटिंग नो ईपीएस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस पॉइंट, बराबर। एवरीथिंग इज गोइंग टू पीएफ। और ये दोनों का टोटल कितना है? सेम। मुक्तिराज भाई क्या 158,400। 17। हाँ ठीक है, मुझे बताइएगा। हम आगे बढ़ते। ठीक, तो ये काम कर रहे थे, ठीक है। Now he utilizes EPF contribution that increase 3% every year along with PPF. तो EPF का contribution जो है वो year on year अब 3% बढ़ेगा। तो सबसे पहले see, one thing is clear that I have to use growing annuity, correct? I have to use growing annuity. Done? अच्छा, अब इसको तो पहले हम एंड तक पहुंचा देते, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसको तो एंड तक पहुंचा देते। ये हमारे पास फर्स्ट एक्यूमुलेशन आया। नाउ टॉक अबाउट सेकंड। तो एंड ऑफ 31st year at the rate of 6. It is 50368. So 5036837. 37. सर रेट कौन सा लिया? 7.5? 6%. 6%. EPF। ओके सॉरी इट इज गिवन। या ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आखिरी लास्ट एंड फाइनल कंप्यूटेशन ऑफ द क्वेश्चन सेज EPF कंट्रीब्यूशन विल ग्रो एट द रेट ऑफ 3% थ्रू आउट। ठीक है, सो वो into 2 करके अमाउंट कितनी लाए थे हम? 1,58,400। ओके, एंड दिस गोइंग टू ग्रो एट द रेट ऑफ 3%। सो 1.06 ये raised to 31 minus 1.03 raised to 31. 31 कहाँ से? Because that is the entire period given to us, and it is 0.03। ये दोनों के बीच का डिफरेंस एंड मोड में है, तो इनटू मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 189 44747। अच्छा सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ईपीएफ तो मंथली ही जाता है ना? तो अगर हम इसको वैसे नहीं जरूरत है हमें कि हम जैसे मंथली कैलकुलेट करें और उसको उस साल में क्या इंटरेस्ट मिला होगा, फिर एक एनुअल वैल्यू पर अराइव करें और उसको फिर ले इनिशियल इन्वेस्टमेंट? नहीं, अगर आप इसमें मंथली ग्रोथ कैसे लाओगे? नहीं ग्रोथ नहीं लाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में मेरे को जो मेरा कंट्रीब्यूशन है 15400, लेट्स से जो भी मंथली अमाउंट आ रहा है मेरा, ईपीएफ तो हर महीने ही कंट्रीब्यूट होता है मेरे अकाउंट में। करेक्ट। तो जब वो कंट्रीब्यूट होता है तो इट विल बी सम अ लिटिल मोर देन 158,400 पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट काउंट करके। yes, वो yes. जैसे नहीं हम करते थे पीपीएफ में, I got it. वो जरूरत नहीं है।
बट वैसे एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी मंथली होता है ना? जैसे एक सेकंड 158400 Got your डिवाइड बाय point 12 entirely. महीने का 13,200 जा रहा है। 13,200 पे पहले जो फर्स्ट मंथ अप्रैल में डला होगा उस पर जो है 12 महीने का इंटरेस्ट, फिर 9 महीने ऐसा। Absolutely agreed. I agree with your point, but आप फिर उसको ईयर ऑन ईयर 31 ईयर्स तक ग्रोथ कैसे दोगे? है कि नहीं? Yes, right. तो उसको मैथमेटिकल एज के लिए भी मुझे बिगिनिंग में करना होगा, एंड दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू। ये बॉल पार्क नंबर है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बट दैट्स हाउ वी कैन डू, बिकॉज कंट्रीब्यूशन पीएफ में यूजुअली होता है मंथली, बट इट इज ग्रोइंग एनुअली, सो इट इज टफ टू कैलकुलेट। सो इसीलिए इसको हम एनुअली कर देते हैं, और इसीलिए मैंने आपको सैंपल पेपर में भी बताया था कि यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है दैट इज हैपनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। सर हमने ये 158 कहाँ से लिया? 158 400 हिरन भाई, અરે મુક્તિરાજભાઈ પેલા ઈપીએફ અને પીપીએફ નું બંનેનું ટોટલ છે. So this is my accumulation number 3. So I've got 3 such accumulations, 1, 2 and 3. 3 accumulation should be compared with this requirement, and definitely देख के तो लग रहा है कि कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, शॉर्टफॉल ही है। तो हाउ मच इज द शॉर्टफॉल? 20567325। ऐसे क्वेश्चन बैक टू बैक चल रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई में भी शॉर्टफॉल है, रिटायरमेंट में भी शॉर्टफॉल है। ऐसे टेंशन हो रहा है कि हमारे आंसर सही तो जा रहे हैं, बट इसमें एक्चुअल में पंगा है। व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम, आई वुड से कि पीपीएफ ईपीएफ में से ज्यादा रिटर्न ही नहीं आ रहे। 6% इन्वेस्टमेंट पे रिटायरमेंट प्लानिंग करेगा आदमी तो कैसे रिटायरमेंट होगा उसका? गेटिंग दिस? सो दैट इज द कैच हियर। एक्सपेंसेस में भी वो कोई कर्टेलमेंट नहीं है। नहीं है, तो 6% ग्रोथ पे तो रिटायरमेंट प्लानिंग हो ही नहीं सकता है। आपको 10% तो कमाना ही पड़ेगा ना रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। My shortfall is coming 2560 something. ठीक है, कितना है? 205 और 250? 2560 2560 है, तो पूरा जीरो ही आगे पीछे हो गया। टू 206 आ रहा है ना सर? 2056 ही है मेरा भी। अच्छा 206 आ रहा है मेरा। सही है सर 2056। ठीक है, सो आई एम नॉट करेक्टिंग इट। बाकी सब अमाउंट मैंने ठीक लिखी है ना, कुछ गड़बड़ नहीं है ना मेरे लिखने में? 1 2 3 1 2 and 3 and then the corpus required। ठीक है, वो दैट्स अरिथमेटिक, तो इशू नहीं है। लाइक प्लस माइनस के इशू को तो लाइक वी कैन करेक्ट, बट बाय एंड लार्ज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जो मेन मैकेनिज्म था ये क्वेश्चन का, आई विल जस्ट गाइड यू विद द कैच। एक तो पीपीएफ के अकाउंट की मैच्योरिटी में प्रिसिशन हमको चाहिए। दैट इज वन मोर थिंग आई सजेस्टेड, दैट व्हाइल सॉल्विंग रिटायरमेंट प्लानिंग क्वेश्चंस वी यूजुअली गेट इनटू बिगिनिंग मोड, मींस एंड ऑफ द ईयर, सॉरी मंथली नहीं बट फॉर द ईयर कर लेते हैं, उसको बिगिनिंग ऑफ द ईयर ले लेते हैं। एंड ईपीएफ एनपीएस इस तरह से हमें कंट्रीब्यूशन दी है, तो वी यूजुअली टेक एंड ऑफ द ईयर कंट्रीब्यूशन। पीपीएफ हाउएवर इज टेकन बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बट अब देखते इसके ऑप्शंस होते थे, देन प्रॉब्ली वी कुड हैव डन इट रियली वेल। वी कुड हैव कंपेयर्ड कि क्या आगे पीछे करने से क्या आंसर्स में चेंज होते हैं। दैट वुड हैव बीन वंडरफुल टू सी। बट ठीक है, चलो बाय लार्ज हमारे पास एक रास्ता तो है। ठीक है, जो कॉर्पस है वो दोनों को ऐड करके जो हमारा आया था 6033 उसको लेस करना है ना उससे। तो नहीं, 3 चीजें थी हमें ऐड करने के लिए। आई जस्ट गाइड इफ इट इज कमिंग बैक। हाँ देखो, ये फर्स्ट कॉर्पस था हमारा ईपीएफ वाला, फिर ये ईपीएफ का एग्जिस्टिंग अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू, एंड देन ईपीएफ में जो ग्रोइंग एन्युइटीज हमने इन्वेस्ट किया, ये 3 चीजें हमारे एक्यूमुलेशन में है। 1 2 3
are our accumulation, and that accumulation is to be compared with the required corpus. वो था 6 करोड़ 3 लाख वाला, Okay, sir. right? Okay, sir. Question number 8 has been done. Now I gave you question number 9 in homework. સર ના આન્સર આવે એનો 2.2 ને એવું બધું આવે છે. Right. So that has been the issue जो मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर कोई भी जुगाड़, मैं भी थक गया कर करके. Sir, tax effect to be given first and then inflation effect, or first inflation and then tax? First tax and then inflation, obviously. First tax then inflation तो भी नहीं आता सर, तो भी नहीं आता. हम दो मेथड से करते. प्रॉब्ली इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी हो सकता है कि इनके ऑप्शन में भी कुछ गलती हो सकती है ना लिखने में. दैट कैन आल्सो हैपन. So अब दो मेथड है. लाइक आई एम फॉलोइंग tax planning sample paper as the base for this question. Tax planning sample paper as the base for this question, जहां पर एफडी के इंटरेस्ट को कुछ अलग ही तरीके से टैक्स किया था एंड दे फाउंड द रेट ऑफ रिटर्न. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट यस, एवरीथिंग इज फेयर इन एग्जाम. उन्होंने जैसे किया, हम लॉजिक नहीं लगाते, वी डू इट दैट वे. एक मेथड हम करते हैं जैसे हम ट्रेडिशनली करते आ रहे थे. सो एफडी का लाइक नॉमिनल रेट कितना दिया हुआ है? 9%. 9%. Divide by 4 and we find out effective rate. So how much is that effective rate? 9.3083. 3083. This is the effective rate. So अब 30% into 1.04 कितना आ रहा है टैक्स रेट? 0.3120, मतलब 31.20. 31.20. It's effective tax rate including cess. Yes. ठीक है, इतना हमारा हो गया. Okay, so now post-tax return, post-tax it is 9.3083 into 1 minus t. So ये कितना आया? 6.4041. 4041. Is that true? सबका आंसर अगर किसी Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. All right. And inflation is always effective, so is the reason we had to do this. So 1.064041 divided by 1.045 minus 100 into 100. 1.8221. 8221 परसेंटेज. ये आपका रिटर्न हुआ. ऐसा तो ऑप्शन में दूर दूर तक नहीं है. So this is how we were used to do it traditionally. उनके आप पुराने सैंपल पेपर भी उठा के देखोगे तो इसी तरह से उन्होंने रेट ऑफ रिटर्न ढूंढा है. But now that they have changed the methodology dramatically, पूरा मेथड ही चेंज कर दिया है. So this isn't the answer. Okay. Now say for example 9% ही रेट है ना. So what do I do is, say for example I'm investing और 2 साल का FD है. This is the FD of how many years? 2 years. 2 years. ठीक है, 9%. तो उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था वही अमाउंट को लेके चलते. चलो लेट्स सी. 3 lakh. 3 lakh है ना. ठीक है. So they invested 3 lakh rupees. N is equal to 8. 5 by is 9 by 4. 1 year has 4 quarters. True. And let us find out FV. 3,58,449. ठीक है. अब इसमें इनका इंटरेस्ट इनकम कितना हुआ? 58,449. दिस इज द इंटरेस्ट इनकम. Yes sir. 0.312 टैक्स काट लेते इसमें से. तो टैक्स की अमाउंट कितनी आती है? हाउ मच इज टैक्स? $18,236. ठीक है. तो चलो इसमें से 18,236 मैंने टैक्स पे कर दिया. तो फाइनली पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कितना बचा? 40212. ठीक है. So in total at the time of maturity what they are going to have is 3,40,212 against a PV of 3 lakh. ठीक है. And FV is equal to 340.
n इज इक्वल टू 2 एंड इसमें जो हम i by y ढूंढेंगे वो इफेक्टिव रेट ही आएगा. इट इज ऑलरेडी कंपाउंडेड रेट. सो पीवी एफवी प्लस माइनस सेट कर दीजिएगा. 6.49. 6.49%. That is your effective rate of return from FD. ठीक है. So 1.0649 divided by 1.045 minus 1 into 100. आप करो तो. Let me also check the inflation rate in question. Just for prudence, it is 4.5. Still confirm करते हैं. 1.9043. हाँ, वो भी ऑप्शन में नहीं है. But I think that is how they would be calculating answer nowadays. ऐसा मुझे लग रहा है. So that is 1.90% के आसपास आपका आंसर होना चाहिए. But इन जो आंसर्स लिखे दूर दूर तक ऐसा भी नहीं है. 1.90 भी नहीं है. So ununderstandable. ये 2 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन है. Like मेरा भी मैच क्या बताते हो. चलो, एनी कमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सर मुझे लगता है कि ये हमने दूसरी बार जो किए शायद बराबर हो. हाँ, मींस जो सेकंड सी कंसीडरिंग द टेक्स्ट प्लानिंग में जो हमने किया था उस तरह से हम करेंगे तो दैट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, अगर सेम मेथड उन्होंने वहां पर कैप्चर की है तो अब ये तो एम्बिग्विटी वाली ही चीज है कि हाउ डू दे कैलकुलेट. टेक्स्ट प्लानिंग में दोनों आंसर दिए थे, यू नो. जो रेट को हम एडजस्ट करते और ये मेथड दोनों दिए थे. और यहाँ पर तो दोनों में से एक भी नहीं आता. So just let's see, probably there is some problem in the question or there is some problem with the options. But हाँ, ये पूछा है. Yes. Yes. N2 पे because this FD has been made for 2 years. वो कल हमने केस स्टडी पढ़ा था, उसमें ये रीड किया था. Right, so there is some problem with it, but yes, we have to be precise with our method. देखते ये किसका पूछ रहे, we don't know, but ये मैच नहीं हो रहा है. तो ये हमारा जो सेट था वो खत्म हुआ. क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपसे पढ़वाता हूँ. Now see what goes in question number 10. Just a moment, give me a minute. You advise Sanjay to plan his estate in such a way that his wife and his son don't face any difficulty in case of sudden death. You advise him. So, suggest the option. So first is testamentary trust that will come into effect only after he dies and they get the benefit in the way he decides. Means Sanjay decides. रिवोकेबल ट्रस्ट विच कैन बी ऑल्टर्ड आफ्टर ही डेथ, ये तो गलत है. रिवोकेबल ट्रस्ट नहीं हो सकती है. इरिवोकेबल ट्रस्ट नहीं हो सकती. बट मुझे इसका ऑप्शन ए परफेक्ट और ठीक लग रहा है. बराबर. राइट, दिस इज 2 to 3 मार्कर क्वेश्चन, बिलीव मी. बराबर, क्लियर. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 हमने अभी किया. यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 17 हमने अभी किया. क्वेश्चन नंबर 15, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इज बैक इन एग्जाम. ये अच्छा हो गया कि हमने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पढ़ा और जो हमने क्वेश्चन किया था डिट्टो वही क्वेश्चन 18 नंबर का है. वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15 नाउ. मस्त क्वेश्चन है. लोन हैज बीन टेकन टुडे एज वी अंडरस्टूड एंड possession is after 18 months. Sanjay takes loan of 70% of the new house he wants to purchase. His EMI would start after 18 months. You assume that due to a declining trend, the repo rate may fall to 5% when he starts the EMIs and falls to as low as 4% after 2 years. Falls to as low as 4% after 2 years. If Sanjay decides to pay the same amount of EMI,
when will he repay the whole loan? जबरदस्त क्वेश्चन, मजा आ गया। मैं जो सॉल्व करने बैठा था मुझे भी मजा आ गया कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत टाइम के बाद लोन का एक क्या चैलेंज लगे ऐसा क्वेश्चन मिला। ठीक है, उनके लोन के कॉन्सेप्ट क्या थे हम फटाफट वो फाइल में पढ़ के विल कम बैक टू दिस फाइल। किधर गया ये रहा। बट हाँ कोई ये सब क्वेश्चन, एक मिनट। ओके, लोन का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? 70% लोन चाहिए, लोन की वैल्यू। Cost is 1.2 crore and loan to value ratio is 70%. Interest अभी तो 9% वो पे करते ही जा रहा है, so that doesn't affect. ये payable है। 32 year is the loan tenure after possession of the flat with 2% above RBI repo rate periodically. Goal is to be debt free before retirement. Perfect. यस डेटा याद रहेगा? सर। हाँ मेरे पास वैसे लिखा हुआ तो है। वी गो बैक टू दैट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसे। मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो देयर वी गो। लोन अमाउंट सबसे पहले 84 लाख 1.2 करोड़ का कितना 70%? 84। 84 lakh. So this is PV is equal to 84 lakh. इस पे हमने जो क्वेश्चन में पढ़ा, मीन्स वो गोल में पढ़ा, अप टू पोजेशन 9% इंटरेस्ट पेमेंट है। सो लोन अमाउंट तो इतनी कितनी रहेगी? इट इज नॉट लाइक अ मोरेटोरियम पीरियड वेरिन हिज लोन अमाउंट विल इंक्रीज एंड ऑन दैट EMI विल कमेंस, ऐसा तो है नहीं, राइट और नॉट? सो इंटरेस्ट तो वो पीरियडिकली पे करते ही जा रहा है। सो व्हेन EMI स्टार्ट्स हिज लोन अमाउंट विल वंस अगेन बी 84 lakh. Correct? Yes sir. And N is equal to 32 year period. And I by phi is 2% above repo. 2% above repo rate. तो यहाँ पर 7 divide by 12 हम कर लेते हैं। 5% repo हमें दिया हुआ है। And let us find out PMT. Do this. Sir 54,880. 54,880. ठीक है, ये परफेक्ट है। अब रेपो रेट EMI तो स्टार्ट कर दी एंड फॉल एज लो एज 4% आफ्टर 2 years। ठीक है, तो अमाउंट करते हैं P1 इज इक्वल टू 1 एंड P2 इज इक्वल टू 24। 2 साल के बाद बैलेंस कितना बाकी होगा वो हम ढूंढ लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट बैलेंस। 82,48,978। लोन के क्वेश्चन में तो वी हैव गॉट डिफरेंट लेवल ऑफ मास्टर, इजंट इट? यस सर। ठीक है, लोन चलते हैं ना। हाँ, इसको हम PV ले लेते हैं। एंड नाउ दैट PMT remains same, so that is 54,880. ठीक है, rate I by Y is equal to now 6 divided by 12, है कि नहीं? यस सर। बस ढूंढना क्या है हमें? N 279। बस यहाँ तक पहुंचना काफी आसान। ऑप्शंस मैच करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? 279 N सबका आ गया। करेक्ट सर। ओके, डिवाइड बाय 12 कर दो तो दैट विल गाइड अस विद नंबर ऑफ इयर्स। 2326 23 है। 23.26। यस सर। 23.26 years। अब मस्त काम करते, मजा आया ऐसा। He is right now 31. His EMI will start after 1.5 years, 18 months. है ना? So he will become 32.5 years when EMI starts, and loan will get over after 23.26 years. तो कितना होगा बताओ? 57 point 57 57 point 1 second sir,
76 ना 56 जी सर 55.76 हाँ वही मैं सर 55 55 आएगा। एक ही मिनट इसमें एक चीज में और ऐड करना सर 2 साल वो भी तो होगा ना वही ऐड कर रहा हूँ सीक्वेंस में +2 सो दैट इज 34.5 ठीक है और प्लस 23.26 दैट इज 57.76 ठीक है अब 0.76 into 12 मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं ना 9.12 तो वो फर्स्ट 9.12 सो आंसर हाँ आंसर इज A for Ahmedabad also A for Anand कैसा लगा Sanjay got an offer to purchase 1,000 rupees 1,000 bond for current price prevailing in market at rupees 1068. The bond matures on 31st March 2024. The coupon rate is 10%, payable in December every year. What would be the yield? ये क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है बट मुझे ये क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्चुअली गड़बड़ी लग रही है Why? Because ऐसा बॉन्ड ना मैंने CFA पढ़ाते टाइम कहीं पे पढ़ा है ना while I was a student I read it कि bond is maturing on 31st March but payments are only on December. That means December में आपको कूपन मिल जाएगा और मैच्योरिटी मार्च में होगी ऐसा तो नहीं होता है so 3 महीने का इंटरेस्ट किधर गया so there is a problem. So what I consider is कि स्टूडेंट ने यहाँ पर गलती की है so 10% payable every March ही हो सकता है इसमें and they are asking us to find out simply YTM है ना ओके चलो अब वैसे देखो तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए सी दिसंबर अकॉर्डिंग टू मी फंडामेंटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट इट शुड नॉट बी देयर बट फिर भी हम इसको करेक्ट करके ही चल रहे हैं सो पीवी इज इक्वल टू -1068 एफवी is equal to redemption value is 1000 and PMT is equal to 100 N is equal to it has been bought now तो 5 साल के बाद मैच्योरिटी होगी ना we are on 1st April 2019 and this bond is maturing on 31st March 2024 तो 5 साल की मैच्योरिटी है what do you say find out I by Y plus minus का सेटिंग आप करो 8.28 8.28% ये आपको 3 मार्क में मिलेगा क्वेश्चन कैसा लगा मस्त सर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है लुकिंग एट एग्जाम क्वेश्चंस प्रैक्टिकली यस सर और हम इतने टाइम से जो पढ़ते जा रहे दैट इज गिविंग अस लॉट ऑफ माइलेज जो हमें ये एक्यूरेसी चाहिए ना वो डायरेक्टली एग्जाम 5 पढ़ के नहीं मिलती है सब पढ़ने से ही इस तरह की डेप्थ वाली एक्यूरेसी मिलती हमें सर माय यस प्रीति इज कमिंग इज 10.9 समथिंग हाँ मैं एक काम कर रहा हूँ इसको एंड मोड में प्लस और ये पीएमटी आपकी एंड मोड में ही आएगी बिकॉज ये बॉन्ड का क्वेश्चन है Got it? Yes, sir. Okay. 17th number का question हम already कर चुके हैं. Now we start with question number 18. Let थोड़ा speed में ले रहे so that we can solve as many questions. Sanjay decides to invest in inflation index bond for his son's further studies. He invests 10 lakh for a period of 10 years. अब कौन सा स्टडी होगा हमको पता नहीं है वो पढ़ते आगे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कूपन रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 1.5% the coupons are invested in debt funds 7.5% वाला and even the maturity amount of inflation index bonds are invested in same fund the total time period being 14 years approximately what amount
will he be able to collect? अब ये क्वेश्चन में दो चीजें मिसिंग है मेरे हिसाब से. इन्वेस्टमेंट रेट जो हाँ, तो मतलब इन्वेस्ट कर रहा है. हमारे पास मान लेते हैं कि 14 इयर्स का है, वो एजुकेशन वाला तो वो कोई काम का नहीं है. सो 14 इयर्स का टोटल पीरियड ले ले. फिर भी यहाँ पर एक चीज का गड़बड़ी है कि इन्फ्लेशन एस्टिमेट नहीं दिया हुआ है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन स्टिल कैलकुलेट इट. कैसे assuming 4.5% इन्फ्लेशन गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द स्टडी. ठीक है, चलो पहले साल का इंटरेस्ट मुझे ढूंढना है, एंड देन इट विल गोइंग टू कैप्चर. अच्छा, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का पीरियड 10 साल का होता है, दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट. सो इफ आई एम इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपए ना, एग्जैक्टली द क्वेश्चन विच वी डिड, ऐसा ही क्वेश्चन है. सो इफ आई एम इन्वेस्टिंग 100 राइट नाउ, ठीक है, तो एक साल के बाद पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.5% इन्फ्लेशन के साथ is going to be 104.5, और इस पे मुझे 1.5% कूपन मिलेगा. So how much is going to be my coupon income? 1.56 is my first year coupon, correct? Yes sir. Right, ये हमने क्या किया? This is simply inflation index bond. So we escalated value by inflation for 1 year, और उस पे हमने 1.5% इंटरेस्ट गिन लिया. So that is going to be your first year interest. Now 1.56 आ गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. एंड अब ग्रोइंग एन्युटी का इक्वेशन मुक्त है, रखते हैं, बट एक मिनट, मुझे वो स्क्रीन पे थोड़ी जगह करनी है. ठीक है, इट्स डन. So let's put in that growing annuity equation. So 1.56 is my first interest into debt fund. So 1.075 raised to 10 minus 1.045 raised to 10, because my interest will also grow with inflation year on year for 10 years. And this divided by 0.03 equals to 2641. 2641. मुक्तिराज भाई सुपर 26.41 6.41. हाँ 26.41 बराबर 2654 આવે છે. 26.54. Right answer is 26.54. 26.54. ठीक है, अब 100 रुपए की मुझे मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी? सो पीवी इज इक्वल टू 100, एन इज इक्वल टू 10, आई बाय वाई इज इक्वल टू 4.5, एंड लेट अस फाइंड आउट एफवी. $15529. ठीक है, एंड प्लस 26.54. सो टोटल एक्यूमुलेशन एट द एंड ऑफ 10th year शुड बी 81.83. 1.83. करेक्ट. सो दिस द एक्यूमुलेशन एट द एंड ऑफ 10th year. अब पीवी को मैं फिर से 181.83 ले लेता हूं. एन इज इक्वल टू 4, इन्फ्लेशन रेट नहीं, बट अब इन्वेस्टमेंट रेट मेरा कितना होगा? 7.5, एंड लेट अस फाइंड आउट एफबी. सर ये 26.41 ही आ रहा है मेरा भी. हमने 1.56 एग्जैक्ट लिया है और उन्होंने 1.56 आगे डेसिमल्स भी लिए होंगे. अच्छा, इसलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम. आई थिंक उससे हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, जो फाइनल आंसर होगा वो 242.82. Yes. 42.82. This is the total accumulation at the end of 14th year with one inflation index bond. Right, so if I'm investing 100 rupees now, so it becomes 242.82. ठीक है, तो अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो how much it would be? So that is going to be your final answer.
So does it become 24 lakh? 2428 45 967. ठीक है. So this is the total amount. से आगे किसी का पीछे की चेंज करने का सेट कर लो. Correct with this. ये मेथड क्लियर हो गई आपको? जी सर. करेक्ट. परफेक्ट. चलो और एक आगे बढ़ते हुए. हटा नहीं रहे. We keep as it is. We read question number 19 quickly. You ask Sanjay whether he has medical insurance or not. He says that as a part of company's group medical insurance, he is already part of. He is a part of company's group medical insurance. You suggest he is protected and need not buy new insurance for the same. नहीं ऐसा नहीं है, because if he changes the job, तो फिर तो problem हो जाएगा. Him to check with his employer whether he is covered for disability insurance or not. If not, then add the same by paying extra premium and also check for something else. Him to check whether he is covered for disability or not. If not, add the same. सर ये एक्चुअली ये तीनों में से जो आप बोले कि जॉब चेंज होगा तो प्रॉब्लम होगा, तो इन दैट केस ही शुड बाय हिज ओन पॉलिसी. हाँ, ये होना ही चाहिए, बट अभी हमारे पास चौथा ऑप्शन भी नहीं है और ये तीन में से अज्यूम कर लेते हैं. जजमेंट पे नहीं ले सकते हैं. But so we don't know what is the answer. सर ऐसा कभी होता है कि उसमें से बेस्ट लेने का, जो भी बेस्ट लगे? मान लो इसमें चौथा ऑप्शन ऐसा ही है कि लाइक जॉब चेंज करने की बात ही नहीं है, तो क्या करेंगे? देन डिसेबिलिटी कवर ऐड करेंगे. हाँ, तो वी कैन चेक कि वेदर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है या नहीं है. इफ नॉट, then he can ask employer to add the same and employer can charge extra premium अगर ऐसा हो तो. Ambiguity में रह गया because we don't know exactly कि इसमें ये क्वेश्चन में है क्या. Okay, question number 20. अब मैं हटा देता हूँ ये फटाफट लिखा हुआ. We start with question number 20. Sanjay is getting an offer to sell his house for 58 lakh. Just a minute. Sanjay is getting an offer to sell his house for 58 lakh approximately. His mother got the house for 4 lakh in 1990 approx. The fair market value on 1st April 2001 was 11 lakh. What will be his tax liability if he decides to sell the same? Now, frankly speaking, you cannot have any easier question than this in the entire paper. So 26 lakh rupees total tax आ रहा है. 11 लाख 21 हम लेके चलेंगे, right? We Yes, have to inflate 11 lakh. ये तो बहुत आसान, इसको तो ओरली कर सकते हैं. I don't need any table also. कि सिंपली मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ढूंढनी है. सेल वैल्यू तो दिया हुआ है हमें, सो सेल वैल्यू इज इक्वल टू 58 लाख. मुझे नेक्स्ट क्या करना है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज इक्वल टू इनटू 289 डिवाइड बाय 100. यस सर. कितना आता है? 31,79,000. यस सर. डिफरेंस 26.21 लाख इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. उस पे सीधा 20% एंड इनटू 1.44 करना नहीं. हो गया. 45. दिस कैन बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन वंस अगेन. अब बताओ, ये क्वेश्चन पेपर इतना ये स्टूडेंट को आसान मिला या पता नहीं, बट ही गॉट इजी पेपर. और आराम से ऐसे पेपर में तो कोई भी पास हो जाए. तो ये भी हो गया.
you evaluate the insurance needs of Sanjay, his salary would increase at the rate of 7% every year approximately, and would be invested at the rate of 7.5% per annum. He consumes 3,50,000 on self, and 2 lakh goes for taxes and other expenses. Assuming he would work till his age 62, what is the shortfall of his insurance needs? ठीक है, ये कौन सी मेथड पूछी, इनकम या एक्सपेंस रिप्लेसमेंट? इनकम दिस इज इनकम रिप्लेसमेंट. आसान क्वेश्चन है ना. चलो अब संजय की ये दो चीजें आप याद रख लो कि सैलरी 7% से बढ़ रही है, इंश्योरेंस प्रोसीड 7.5% पे इन्वेस्ट हो रही है, और 3.5 एंड 5.5 लाख 5.5 लाख 5.5 लाख माइनस हो रहे हैं. ठीक है, चलो. सो वी गो टू द केस स्टडी. So let us find out income of Sanjay. यहां तक फिर से बराबर. PF is not to be considered. Salary income कितनी? This is the family income for the family, और income 18 lakh 18,000. 18 lakh 18,000. ठीक है, उसमें से हम कितना कट कर दे रहे हैं? 5 lakh 1000 रह गया सर. इट इज 1833 शायद. क्या ये 15,000 रह गया क्या? हाँ 33. हाँ शायद ये करेक्ट रह गया. ठीक है, चलो. सो फाइंड आउट द नेट अमाउंट. 12,83,000. ठीक है. अच्छा, अब संजय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 62 तक की है. सॉरी, रिटायरमेंट एज 62 की है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ज्यादा इनफैक्ट. ओके, सो इसको हम क्या ले लेते हैं? लेट्स टेक दिस अमाउंट एज PMT इन द बिगिनिंग मोड. N इज इक्वल टू 31 years. I/Y शुड बी रियल रेट. ठीक है, 7.5% पे इन्वेस्ट करेंगे. 7% सैलरी का ग्रोथ था, एंड वी हैव टू फाइंड आउट PV and compare this answer with 50 lakh rupees, which is the current requirement. Difference is our answer. $321 चाहिए. 3 crore 21. 3 crore 31 lakhs 19,423. अच्छा, मैं लिख लेता हूँ. 3 crore 19 lakh 46,292. So 319 lakh is the requirement. उसमें से 50 हम हटा देते हैं. So how much is it? नहीं सर, 50 हटा के. 50 हटा के क्या? हाँ, तो टोटल आ रहा है हिरेन भाई 371,19,423. हाँ नहीं यही आ रहा है. 371 है ना? हाँ. एक मिनट, मेरा तो 319 आया सीधा. नहीं, 50 हटा के नहीं, ये टोटल. उसके बाद 321 अच्छा हाँ PV बराबर. 37,11,942. बराबर है. ठीक है. सो 3 crore 21 lakh रुपीस का इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है. ऑप्शन में चेक करते अगर उसने वो बच्चे ने कुछ लिखा है तो. हाँ, होगा. बड़े ही ऑप्शन है. So we found family income contribution. सैलरी का ग्रोथ ले लिया, 7.5% ले लिया, बराबर. So I think we have not done anything confusing. It is perfectly okay question. और भी ऑप्शंस रहेंगे, so we can match it. सर ये 3 मार्कर. हाँ, ये 3 मार्क है. Obviously this 3 marker question.
ये संजय 24 इज नॉट संजय का क्वेश्चन. Sanjay has made a nomination in all his asset. What is the important at this stage to plan a succession? So nomination के बारे में पूछा होगा कि nominee has to be a legal beneficiary. ये सब हमें कुछ दिया होगा, ऐसा कुछ होगा हमारे पास. बट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास मिक्स्ड बैग है, वो प्रॉपरली हमारे पास नहीं है. ये संजय का केस स्टडी नहीं है, बिकॉज संजय डजंट हैव एनी एनपीएस. ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं संजय का और कुछ क्वेश्चन हमारे पास है. हाँ, ये एक नया क्वेश्चन आया है, प्रॉब्ली ये आपको ढूंढ के देना है, मुझे कुछ भी हो जाए. आई वांट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यू advise Sanjay to take personal accident cover as a part of his car insurance. What do you explain as a benefit of such cover? Only Sanjay will get benefit from the cover due to mounting and dismounting. अब ये एक्चुअल में माउंटिंग डिसमाउंटिंग आता किसमें कि हमारे पास जो व्हीकल इंश्योरेंस में उसमें 15 लाख का मैंडेटोरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर है. सो पर्सनल एक्सीडेंट कवर में ये माउंटिंग डिसमाउंटिंग रखा हुआ है. पता नहीं अपने इंस्टीट्यूट वाले तो क्या कॉर्नरिंग कुछ भी वर्ड सुन लिया गूगल पर पूछ लिया, ऐसा है ना. ये मैं कब से पूछ रहा हूँ सबको, किसी को आंसर नहीं मिल रहा है कि व्हाट इज माउंटिंग डिसमाउंटिंग. में वही पूछ रहा हूँ. वर्किंग लोगों को तो पूछो तो आंसर ही पता नहीं. ये तो हमने पहली बार सुना, ऐसे ही सब बता रहे हैं. अब किसको पूछे वो अपने आप में चैलेंज हो गया अभी. You advise Sanjay to take personal accident cover as a part of his car insurance. Only Sanjay will get benefit from the cover due to mounting dismounting. Sanjay and his family will get the benefit from cover due to mounting dismounting. Anyone can get benefit from the cover due to mounting and dismounting. And last one, Sanjay or anyone who is driving can benefit from the cover due to mounting and dismounting. अब समझो ये आपके एग्जाम में 3 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन है, आंसर आपको लेके आना है, कुछ भी हो जाए. बट सर पर्सनल एक्सीडेंट में तो फैमिली को ही बेनिफिट होएगा ना. नहीं, बट ये माउंटिंग डिसमाउंटिंग मैं कह रहा हूँ वैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक बार को ये एनीवन को बेनिफिट मिलेगा नहीं. संजय तो चले गया तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? नहीं, इसमें एक्चुअली माउंटिंग पर्सनल एक्सीडेंट में मर नहीं जा रहा है, वो मर जाएगा तो लाइफ इंश्योरेंस में से कवर आएगा. अच्छा, हाँ नहीं मंदिर भाई ये ढूंढ के लाना है. आई वांट दिस आंसर बाय वेडनेसडे. कुछ भी हो जाए, आप पूरे आपके लाइक जहां जहां पर पूछ सकते हो वहां से पूछ के ही आंसर लेके आओ. आई वांट दिस. नाउ सी, ये रहा कंसिडरिंग इन्फ्लेशन 5%. अब देखो यहाँ पर हमारा जो आंसर था लाइक जो एफडी वाला, उसमें इन्फ्लेशन जो वो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने नहीं लिखा था, बट यहाँ पर ये स्टूडेंट ने लिखा हुआ है रियल रेट ऑफ रिटर्न ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक एफडी आफ्टर टैक्सेस इफ इन्फ्लेशन इज 5%. अब हमारा आंसर मैच हो जाएगा उसमें, बराबर. अब ये आप चेक करके आई वांट समबडी टू पुट दिस आंसर इन ग्रुप 5% लेके. ठीक है, अब संजय के लिए और क्या बचा हमारे पास. हम नेक्स्ट वेडनेसडे तो सीधा अब हम ये, ठीक है, वर्ल्ड टैक्स लायबिलिटी. देखो ये क्वेश्चन सेम दूसरे स्टूडेंट को भी पूछा गया है, 11 नंबर का. घर बेचा है वो. मेडिकल इंश्योरेंस कवर, इसमें इनको भी 3 ही ऑप्शन याद है. ओके, राइट, सो ओनली 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल. फिर लोन वाला जो है ये हमने कर लिया, वी हैव डन इट. उसका इन्फ्लेशन का 2.0 समथिंग आ गया. हाँ, ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड. अच्छा, आईआईबी काम कितने आंसर लेके आए थे? 24 लाख जैसा कुछ हम लेके आए थे ना. 28. हाँ, तो हमारा आंसर आई थिंक बी के साथ मैच हो जाएगा इफ देयर आर नो फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल. हाँ मंदिर भाई, आप इन्फ्लेशन वाला कुछ बता रहे थे. मैंने रैंडमली वैसे किया 340 एफवी लेके और 3 लाख लेके अप्रोक्सीमेट, तो 2.0 समथिंग आ रहा है आंसर, जो डी ऑप्शन था. 2.02 आएगा. अच्छा, 2.02 है ना. ठीक है, चलो परफेक्ट. सो हिरेन भाई का आंसर बराबर है. ऐसे क्वेश्चन में 2.02 होना चाहिए.
यू आर राइट। वीरेन भाई अब प्रो लेवल पे पहुंच गए, क्वेश्चन देख के आंसर भी जज कर लेते हैं। ठीक है 6, और अब यहाँ पर संजय के रिलेटेड नहीं है। ठीक है चलो, सो नेक्स्ट, अब हमारा सेशन यहाँ पर खत्म हुआ आज। वी हैव डन सो मेनी थिंग्स टुडे।